એટલે પૂના રહે છે પૂના. અમે આ વોઇસ નથી. અરે શું આ બધું કીધું? શ્રી વાસ્તવ પ્રભુ પેલા આપણે તેઓ માવડીવાળા પ્રભુ ખરા ને એમને મળ્યા છે. એમને ઓળખું છું અને પ્રભુનો સત્સંગ સાંભળ્યો. એમને પ્રભુના હાથે કરવાની ઈચ્છા હોય તો પ્રભુ કરાવું કરો. હવે દીના માતાજી આ રહ્યો ફોન કરજો. કેવી રીતે કરે? આ રહ્યો નંબર. આ કેવી રહ્યો રીતે કરો? લખ્યું, જોયું, નામ તારીખ બધું. એટલે વોટ્સએપ કરજો એ તો કોલ એડ કરીને કરે એટલે 41 પછી સ્પીકર સારું કેટલી હા અને ગણી લીધા? હા એટલે જ ને એટલે સેવ કરીને કરું છું. નામ આવે 105. એટલે હિન્દી છે કે ગુજરાતી? ડૉક્ટર છે કર્યું એ વાસ્તવ વાસ્તવ પ્રભુ નામ લખેલું હોય. એના ડૉક્ટર કેવું બોલ્યા નહીં? ના એ તો આપણે ત્યોના માવડીના ડૉક્ટર પ્રભુ ખરા ને મેં સેવ કર્યો એમનો પણ મળેલા. એટલું ફાસ્ટ અપડેટ નથી. હા તરત નથી કર્યું એ તો થઈ ગયું સેવ કર્યો એને મૌનમાં રહેવું છે. એ જ પછી સેવ કરી દીધો પ્રભુ ફોન આવે છે. આઉટ સ્ટેટના છે. એ આઉટ પછી સ્ટેટના બીજા રાજ્યના છે. એટલે આવે પણ એમને સાયલા આશ્રમથી એવું કહ્યું હશે કે ત્યારે કલ્યાણધામમાં તમારે મૌન રહેવું હોય તો એકાંત અને વિશ્રામ કરવું થશે. સાધના પણ થશે. સેવ કર્યા પછી જ થશે અને એ થઈ ગયું જોવાનું નથી. ઓલરેડી થઈ એમ ગયું કે હું એમ કે તત્વરૂપમાં બેસીશ અને પૈસા ભરવાના થશે તો વ્યાપકમાં આપણે પ્રદાન કરી દઈશ. કેટલી અવસ્થા છે? મને એમ કે સશક્ત છે. વાત કરી હતી મારી એટલે સાથે. રિફ્રેશ થાય ને એટલી બધી વાત કરી. તમારે પરિચિત છે? ના મને મળ્યા નથી. તો પછી પણ એ સાયલા આશ્રમ કહો ને લીમડી પાસે એ ત્યાં રહેતા હતા. એટલે ત્યાંના મેનેજરે મને ફોન કર્યો અને રેફરન્સ આપ્યો છે મારો. બાકી મને ડાયરેક્ટ નોટ કરી છે નંબર. તો પણ એ સાયલાવાળા મેનેજરને કેવી રીતે મારામાં ખબર? મોકલ્યો હતો અને મારામાં સેવ પણ કર્યો એમને મૌન એમ નહીં, પણ અહીંની કેવી રીતે ખબર? એ તો એ જાણે છે. એ સાયલાના મેનેજર છે ને હરિવર્ધન ગણપત એ પહેલાં અહીં આવી ગયા છે અને ઈડરમાં પણ હતા. એ મારા પરિચયમાં હતા. એમને કહ્યું છે કે રખિયાલ પાસે કલ્યાણધામ છે ત્યાં તમને મૌન એકાંતમાં રહેવાની આ તો તમારી બાજુની રૂમ છે ને? ત્યાં ગમે તે. અથવા તો અહીંયા છે? અહીંયા રહેશે. હા, તો તમને જેમ સર્વંતરવણી કહેણા છે ને યોગ્ય લાગે એમ તમે અમને પૂછવાનું જ નહીં. મેં અમને વાત કરીને ત્યાં કહ્યું કે બે વસ્તુ તમારે અહીંયા આવો છો બીજી કોઈ પણ વસ્તુ વિચારે કે એક તત્વબોધમાં રહેશો અને બાકી પ્રસાદ જે ન બને વ્યાપકમાં એક અને એના નિયમ સમય કહી શકે કે ત્યાં એ સમય એ તો સવારે આ લોકો પ્રસાદ લેતા હોય. સાધક છે અને મૌન સાધના કે મારે વિશેષ કરવી છે પોતાની. આજે અહીંયા રૂમો છે ને? પૂછાવડે ત્યાં બોલતા નથી આવડતું. હા. ઓમ ઓમ ઓમ. हाँ बोलिए. हाँ जी, हाँ जी. आनंद मंगल. कैसे हैं आनंद मंगल? जी 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 सब आशीर्वाद से मैं ब्रह्म कृपा ही केवलम. आनंद मंगल. हाँ, बोलिए फरमा. और मैं गया था स्वामी जी अलंदी में अच्छा वहाँ पे मुझे आपकी एक योग वशिष्ठ की बुक मिली है अच्छा. तो आपने निर्वाण पूर्वांग और
स्वामी जी मैं भी बहुत ज्यादा वशिष्ठ मुझे बहुत पसंद है हाँ हाँ और मैं बहुत पढ़ता हूँ वशिष्ठ। हाँ तो आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी की बहुत अच्छे से मुझे बड़ी अध्यात्म की समझ हो जाए तो मैं तो समझ हो जाए। तो सब वही तो सब है जी उसमें, तो सहज है, स्वयं है, सहज है जी और सब कुछ है। जी हम्म, आपके दर्शन करने का भी प्लान है, मैं आऊँगा अहमदाबाद। अच्छा जी तो आप पुणे रहते हैं? जी पूना में रहता हूँ स्वामी जी। अच्छा आप महाराष्ट्र हैं? नहीं मैं एक्चुअली हूँ बनारस के पास में एक भगवा जगह है, हाँ मतलब आप बनारस ही समझ लें, बनारस से 60 किलोमीटर की दूरी पर। कितना? 60। बराबर, ठीक है। जी तो मैं वहीं का हूँ मैं, अच्छा लेकिन मैं 7 वर्षों से पूना में रहता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा है। मुझे आपके बारे में वही जो डॉक्टर स्वामी हैं हाँ और आप जहाँ रुके हुए थे अलंदी में, हाँ वो सब हमको दिखाए, वो भी स्वामी जी यहीं पे रुके थे। हाँ आपका ये वशिष्ठ किताब उन्होंने मुझे दिया पढ़ने के लिए। अच्छा जी वो लोग तो बहुत 89 से लाभ ले रहे हैं जी जी स्वामी डॉक्टर बाबू नारायण जी स्वामी। जी जी स्वामी। और 2000 मैंने थोड़ी पढ़ी थी, रात को थोड़ा पढ़ूंगा उसको ज़्यादा। हाँ जी 2015-2017 में भी तत्वबोध हो गया वहाँ, जी जी और 89 में तो हम खासा रहे थे वहाँ, जी जी ज़्यादा रहे थे, तो जी तब नारायण स्वामी बहुत लाभ लिया। जी स्वामी। हाँ उनका लाभ लो, वो भी तो उसी में रहते हैं, उसी उनका लाभ लो। जी उनसे मैं लाभ लूँगा। मैं आज गया था। वो तो अखंड उसी में रहते हैं, जी उसी में समर्पित है जी बचपन से, जी स्वामी। प्योर एंड श्योर है वो, जी और सरल है एकदम, संपूर्ण भगवान के मानस। जी उनका उनसे एकदम सीधा आपको सत्य, स्पष्ट सत्य मिलेगा। डॉक्टर स्वामी जी से ना। डॉक्टर स्वामी, भास्कर प्रभु, दोनों हाँ दोनों मुझे भास्कर प्रभु की नहीं अपनी किताब दी है हाँ वशिष्ठ। दोनों ने लाभ लिया है फुल, बहुत वर्षों से। जी तो स्वामी जी ये जो योग वशिष्ठ पे जो आपकी बुक है, हाँ, वो एक ही है या और भी है? योग वासिष्ठ उनके पास वो है। कैसे ये मुझे एक ही बुक मिली है। अभी कौन कहाँ की छपाई, कहाँ प्रिंटिंग कहाँ का है? दिल्ली का? नहीं प्रभु, हमने छुपाई वो ब्लू कलर वाली जो हमने वहाँ लिया था। कुछ हाथ से आपका लिखा हुआ है और बाकी सब टेक्स्ट है। हाँ वो तो गुजराती में भी है बहुत। अच्छा नहीं, हिंदी में एक ही बुक है ना आपकी? ये वेंकटेश प्रेस की पार्ट 2 जो है ना, उसमें हमने निर्वाण पूर्वाध के 29 से 42 लिए थे, बस ये है। हाँ वो तो वेंकटेश प्रेस की है। स्वामी जी के जो वीडियोस भेजे हैं वो आपके पास है। हाँ वो वेंकटेश प्रेस के। अच्छा और हमारा तो क्या है कि आपको इसमें मिलेगा, वीडियोस भेज दिए प्रभु। वीडियोस भेज दिए ना। हाँ वीडियोस भेज दिए हैं आपको। हाँ तो वो हमारा 2015 और 2017 का, 2015 का 34 दिन का है, 2017 का वो आपको कितना दिन का है? मुझे दो ही वीडियो मिले हैं सिर्फ। 2 ही वीडियो भेजे। प्ले लिस्ट है, एक में 72 है, एक में 54 है। क्यों है? दो प्ले लिस्ट है आपको जो भेजे हैं वो, उसमें एक में 72 वीडियो है, एक में 54 है। अच्छा ऐसा है क्या? वो मैं देखूंगा। उसमें सब आ जाता है। जी सब योग वशिष्ठ के ऊपर ही है ना? वो योग वशिष्ठ के सिवा यहाँ दूसरा कुछ चलता ही नहीं। और यहाँ तो योग वशिष्ठ का 39th राउंड है, 39वां राउंड चल रहा है, अरे वाह। पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक। जी गुजराती भिक्षु
गुजरात में भिक्खुआखंड सत्सु साहित्य का जो अनुवाद है तो 2 बड़े भाग है। तो पहले भाग में 5 प्रकरण है, वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, और दूसरे भाग में निर्वाण पूर्वार्ध, निर्वाण उत्तरार्ध। तो दोनों भाग के मिलके 1756 पेज है। तो पूरे 1756 पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक 39वां राउंड चल रहा है। ये तो गुजराती अनुवाद है। हाँ, भिक्खुआखंड सत्सु साहित्य अहमदाबाद में छपा हुआ है। उसके दो भाग हैं, 1756 पेज है गुजराती लैंग्वेज। लेकिन हम तो जहाँ हिंदी लैंग्वेज चलती है वहाँ हिंदी में तत्वबोध करते हैं योग वासिक का। जैसे यूपी में जाते हैं, गंगा तट पर है भगवानपुर, तो वहाँ हिंदी में करते हैं। ये यहाँ आनंदी में हिंदी में किया था। हाँ, और तो सब लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन है। और तो सब लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन होता है। क्योंकि स्वामी वेंकटेशानंद जी करके है, उनकी मैंने पढ़ी है। अच्छा, वो तो शिवानंद आश्रम के, वो शिवानंद से स्वामी से किसी से पढ़ा। और एक चिदानंद स्वामी जी है, उनकी भी एक अंग्रेजी में, वही अंग्रेजी वाली मैंने तो पढ़ी है। तो स्वामी जी आपको दर्शन के लिए वहाँ पे आएंगे तो कुछ मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन तक बात करूँ आपसे कुछ योग वशिष्ठ पे मैं कुछ आशीर्वचन आपसे लूँगा। तो यहाँ का तो आपको सब मिलेगा, एड्रेस और वो आपको दिया होगा ना, एड्रेस दिया है। जी जी जी, भेजा है। तो बस तो आप ऐसा कुछ आपका कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ इवेंट्स वगैरह सब कुछ होता है क्या? सत्संग वगैरह का? हाँ, तब तो वो सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8। अच्छा, और जी सर। हाँ बोलिए। तो मैं जरूर आऊँगा स्वामी जी, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं आपके साथ थोड़ा योग वशिष्ठ को थोड़ी हाँ, जी प्लान करता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ, जी लेकिन हम ये जन्माष्टमी जो है ना 16 अगस्त से, जी तो 16 से 23 तक हम वहाँ महातीर्थ दर्शन जाने वाले हैं। वो मालूम है ना? बता रहे थे कि हम बनारस जाने वाले हैं। ना, पहले यहाँ से जाएंगे चित्रकूट, चित्रकूट से प्रयागराज, प्रयागराज से काशी विश्वनाथ, और वहाँ से अयोध्या राम जी, और वहाँ से रिटर्न, रिटर्न में ये राजस्थान में सांवरिया सेठ। यदि मैं उस टाइम पे यदि अपने घर आया तो शायद मैं आपसे बनारस में मिलूंगा। अच्छा यदि मैं रहा तो, अच्छा, और यदि नहीं आ सके तो फिर मैं आपके गुजरात में अहमदाबाद में मिलूंगा। हाँ जी। जी हाँ, यहाँ तो कंटिन्यूस योगा सेट कंटिन्यूस चलता है। जी जी, मैं जरूर आपके सानिध्य में समझना चाहता हूँ स्वामी जी ये योग वशिष्ठ। मुझे कुछ थोड़ी सी है तकलीफ उसको समझने में, हाँ, अब लेकिन आपसे फोन पे पूछना अच्छी बात नहीं है। क्यों पूछ सकते हैं, फ़ोन में क्या अर्ज है? पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, पूछूं मैं, आप आशीर्वाद देंगे तो पूछूंगा। अच्छा पूछो। अच्छा, मुझे ये चीज ये थोड़ी सी तकलीफ होती है स्वामी जी समझने में कि जैसे एक भगवान है, हेलो, हाँ जी, हम सुनते हैं। भगवान है, तो हम जो भी नाम दो, हम्म, एक ब्रह्म है, और दूसरी तरफ जो है एक सृष्टि है, एक क्रिएशन है, जिसमें हम हैं या जितनी भी चीजें क्रिएट हुई हैं, जिनकी सृष्टि हुई है। तो मुझे एक ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो सृष्टि हुई, एक तो मुझे वो पता है कि सृष्टि हुई नहीं है, ये अज्ञान है, ये तो सबको निगेट कर दिया है बस इसमें, वो ठीक है। लेकिन
जरूरत है, इसकी जानकारी है, तो अब या झिटियल पावक गगन सभी जो 5 तत्व है, उस 5 तत्व से सृष्टि बनती बढ़ रही हो बिगड़ रही। क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ मैंने या फिर से स्वामी जी? नहीं, हम आपको सरल, सहज और स्पष्ट बताते हैं, शॉर्ट में। जी जी ये सारा का सारा जो है, यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में जी परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। जी यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। करेक्ट। यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण है। जी यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगण है। जी यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा है। जी तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है। इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत, अनंत संपूर्ण अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। तो ये बस यही है, और कोई प्रश्न नहीं है। तो ये स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। तो ये महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति। तो बाकी जो भी कुछ जो बाकी कुछ भी भासता हो तो अपीयरेंस मात्र है, वो कुछ नहीं है। अपीयरेंस, आभास मात्र है, वो कुछ नहीं है। तो उसके प्रश्न भी कुछ नहीं है। और जो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, तो महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश कैवल्य अनिश्चितार पर, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन। तो महाचिदाकाश का भी कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, महाचिदाकाश सिवा कुछ नहीं, महाचिदाकाश के अंदर कुछ नहीं, महाचिदाकाश में होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो जो ये प्रश्न है, तो जिसको कल्पना कहते हैं, जिसको भ्रम कहते हैं, इमेजिनेशन, इल्यूजन, या जिसको मोह कहते हैं, तो उसके प्रश्न है। अज्ञान, इग्नोरेंस, तो माया, तो भ्रांति, तो वो कुछ है ही नहीं, इसलिए उसके कुछ प्रश्न ही नहीं है। और महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं है। वो चिदाकाश एक ही, अद्वितीय, अनादि, अनंत, ऐसा। तो पूर्ण ब्रह्म, अनंत, संपूर्ण, अखंड, अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म, ट्रुथ, एब्सोल्यूट। तो यही सब कुछ है। ये बस दूसरा कुछ, परम चैतन्य आकाश, परम चिदाकाश है। तो ये जैसे भूताकाश है वो नहीं है, उसका सूक्ष्म जो चित्ताकाश है वो भी नहीं है, उसका कारण जो मायाकाश है वो भी नहीं है, और केवल अनंत शुद्ध चिदाकाश है। अनंत शुद्ध चिदाकाश, उसका केवलपना है, उसका कोई प्रश्न नहीं। तो जब ये तत्वबोध मनुष्य वसिष्ठ प्रकाश से सरल श्रवण, अखंड पूर्ण तत्वबोध का श्रवण करता है, तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, भ्रम नष्ट हो जाता है। और वो प्रकाश तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। तो वो प्रकाश ही प्रकाश का है। तो उसमें बस परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। तो यही बस ये स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला है। उसमें ये मैं नहीं है, जगत नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो जब अहंकार नहीं रहता है जहाँ, तो वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। तो ये देह में हूँ, ये अहंकार है, और ये भ्रांति है, मिथ्या है। ये असत असत संसार है, ये असत असत दुख है, मिथ्या नाशवंत है, और स्वप्नवत और मृत्युष्णा के जल समान है। ये कुछ नहीं, ये मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है। तो महाचिदाकाश सब कुछ है, और परम आनंद, परम शांति है, और परम कैवल्य है।
परम सत्य है, परम चैतन्य है, परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है, परम पूर्णता है, परम समता है, परम तृप्ति है, परम तृप्ति है, परम संतोष है, परम समाधान है, परम कल्याण है, परम ऑल एंड ऑल इन ऑल। दूसरा कुछ है ही नहीं और दूसरा कुछ होता ही नहीं। जैसे आकाश में आकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। वैसे अनंत हाँ, तो जैसे आकाश में काली पीकी कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली पीकी कलंक कभी संभवित नहीं। तो ये तत्व से जो क्लियर हो जाता है तो उसमें मैं नहीं रहता है, जगत नहीं रहता, दृष्टा दृश्य जीव जगत साक्षी साक्ष्य समष्टि व्यक्ति कारण कार्य सूक्ष्म स्वर कोई कल्पना या कोई भ्रांति नहीं रहती है और सीधा बस यही रहता है जो है सो है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। तो है जो नहीं है उसके प्रश्न भी नहीं है और जो है उसके प्रश्न भी नहीं है। तो परम शांति ही है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। और जहाँ ये प्रकाशता है तो वहाँ यही प्रकाशता है, वहाँ दूसरा कुछ मैं भी नहीं होता है, जगत भी नहीं होता है। ऐसा जो होता है वशिष्ठ जैसा जो होता है तो वो ऐसा कहेंगे कि वशिष्ठ कहते कि मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। राम को कहते हैं तुम राम नहीं हो, तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ये जगत नहीं है, ये जगत अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो मैं तू वह यह कुछ नहीं है, वो भ्रम है खाली, वो है ही नहीं। फिर है कहना भी नहीं है, नहीं है कहना भी नहीं है, नहीं है को नहीं है कहना भी नहीं है, और है को है कहना भी नहीं है। वो तो स्वयं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप। तो है को है कहना भी नहीं है, नहीं है को नहीं है कहना भी नहीं है, और है ही है। और यही परम शांति है, सुप्रीम पीस। समझ में आया? हाँ, ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषय आनंद असत्य है। ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषय आनंद असत्य है। राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति असत्य है। अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति असत्य है। अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति असत्य है। फिर द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, मैं इसलिए मैं अमुक जीव हूँ, मैं इसलिए मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं ये देह हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये भ्रांति भी असत्य है। हाँ, डॉलर और भोगों की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति भी असत्य है, उसमें सुख भ्रांति भी असत्य है, कुछ नहीं है। और माचिदाकाश परम आनंद, परम शांति ही है ही। ऐसा जो रहेगा तो उसी से वैसा रह सकते हैं, ऐसा जो नहीं रहेगा उसी से वैसा नहीं रह सकते। और वो भी जिसको रहना होगा तो ही रह सकता है, जिसको वासना रखती है, जो जिसको वासना रखनी है वो ही ऐसा नहीं रह सकता। जिसको देहाध्यास रखना है उसको ये नहीं रह सकता, ऐसा नहीं रह सकता। जिसको पैसे और भोगों की वासना भ्रांति में सुख भ्रांति है वो ऐसा नहीं रह सकता। और जो ऐसा रहा है उसमें ये कोई कचरा नहीं होता है, वो प्योर एंड श्योर होता है। और जो जिसको ऐसा रहना है वही उसको पहचान सकता है। वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है और वासना सबसे बड़ी शत्रु है। वासना ही बंद है और ये आत्मज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञानात एव तो कैवल्यम। बोलो और कुछ ना। वो जो 2015 और 2017 में जो प्रकाश किया है उसमें सब आ जाता है। नहीं आपको भेजा ही ना, बोले क्लिप, वो वीडियो में सब आ जाता है। वो तो वेंकट प्रेस की है। हस्ताक्षर करना। क्या पूछते हैं?
नहीं, वेंकटेश प्रेस की जो पार्ट 2 है योग वासिष्ठ महारामायण की, उसमें आगे प्रभु के हस्ताक्षर हैं। प्रिंटिंग सब जो वेंकटेश प्रेस का है उसी का है। अच्छा, लेकिन इसमें इस किताब का नाम लिखा हुआ है। आप जब वीडियो देखोगे ना तो 2017 में ये बुक हाथ में रखी गई है और 2015 में गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त योग वासिष्ठ महारामायण साथ में रखिएगा और वीडियो देखिए, संपूर्ण आ गया। नहीं, बुक इसमें यहाँ क्या चलता है कि बुक को पढ़ने वाला उसका सरल श्रवण होता है, फिर उस पर तत्वबोध होता है। तो आनंदी में फुल तत्वबोध किया है 2015 और 2017 में। तो कोई भी बुक से अधिक है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको कोई बुक की अपेक्षा नहीं है। और हाँ, जो हैंड राइटिंग है हाँ, तो वो हमारे होंगे। हाँ, हैंड राइटिंग है। हाँ, वो यहाँ के, लेकिन उससे भी 2015-2017 का वीडियो में आपको फुल मिलेगा प्रकाश। उसमें जो पढ़ते हैं वो नहीं, फिर उस पर जो प्रकाश होता है, जो हम बोलते हैं वो सुनने का बराबर। पढ़ने वाला तो ठीक नहीं पढ़ता है, वो तो ऐसे ही पढ़ता है, वो नहीं गिनने का। दूसरा जो व्यक्ति पढ़ता है ना सामने बैठा हुआ, वो नहीं, फिर हम जो प्रकाश करते हैं उसको बराबर सुनने का। समझ में आया आपको? वो पढ़ने वाला बराबर नहीं पढ़ता है वो। हाँ, तो उसमें सब आ जाता है, फुल प्रकाश है। 2015-2017 आनंदी। इसमें कितनी क्लिप है? 2015 में 72 है और 2017 की 54। 72। वो 2 वीडियोस नहीं है, उसको टैप करोगे तो जो 2015 है उसमें 72 वीडियो खुलेंगे और 2017 में 54 की 64 54 54। वो दो नहीं है, अंदर खोलेंगे तो 72 और 54 मिलेंगे। जो बुक पढ़ता है वो नहीं गिनने का, फिर बाद में जो प्रकाश जो मुक्त सत्संग होता है वो सुनने का। उसके ऊपर जो मुक्त सत्संग होता है वो सुनने का। पूरा ध्यान से, पूरा उसमें सब आ जाता है। ऐसा नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट, नग्न सत्य खुला रहस्य, नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा ठीक है। ओम ओम ओम। એટલે કંઈક કહેતા ને એક જ જણના હતા એવું હતું રેકોર્ડ? એક આપી દીધા પછી એક જ જણના રહ્યા? हाँ एक दिन અમે તો વધારે સમજતા હતા। તમને ખ્યાલ છે બરાબર? ख्याल से ખ્યાલ છે? એક જ જણ एक दिन સમજે? અમને તો વધારેનો ખ્યાલ હતો। ना
ભૂલ નથી થતી ને ના નહીં થતી. એક્ઝેક્ટ રાખો કાલે 39 કીધા, ખાલી 39 ની જ વાત કરી. 39 એટલે 5 ઉમેરવાના હતા ગઈકાલે. એ પછી એક થયા ને હમણાં ખાલી હવે 15 ઉપર આવ્યા. પોતું મેળાના 15 રૂપિયા. 3 મામા ચારની સેવા રહી એક આપ્યા પછી ચારની. 40 ની અપાઈ ગઈ ને 4 ની રહી. આ ગઈકાલે 5,000 ઓછા હતા, 95,000 પ્રભુને વિવેક થયા ને ત્યાં 95,000 હતા ખાલી. 5,000 ઘટતા હતા તેને બદલે હમણાં ઉપર 20 આવ્યા, એકની ઉપર 20 થયા. તો આ લોકો તો એક જ જણના કે છે ને. હા, એટલે 3 હમણાં આપ્યા. ત્રણ અત્યારે આવ્યા અને એક સવારે આવી હતી. એ પેલી નહીં કાલે હર્ષદ પ્રભુને એટલે કુલ કેટલા રહ્યા 4 ની સેવા ચાર રહી. જણની 4 જણની. હા 4 જણના 20,000. 20,000 4 ભાવિકના આવ્યા, એકના 10 આવે ને એકના 5. 5 હા, આવે. એકના બરાબર એકના 5 5 હા, બરાબર. એટલે અમારા ખ્યાલમાં 25 હતા એવું હતું 25,000 કાલે એવો ખ્યાલ હતો 5 એક આ એ 20 થયા. એક કારણ કે પેલા હર્ષદ પ્રભુને 3-4 છે એવું વાંચેલી ને 5 ઘટા હતા ને એટલે તેમાં 5. એક્ઝેક્ટ 0-0 થાય છે ને હા, exact થાય. એટલે હવે કેટલા જણના આવ્યા કહેવાય 4 જણના. 44 ના એ કુલ 44. 44. કુલ 44. એટલે બધા. બે આપ્યા ને હા બે આપ્યા હા એટલે હવે 41 થી 60 ગણવાના ને હા 41 થી 60. ત્યારે એક થાય હા બરાબર ને હમ. એ 44 છે ને બરાબર